second part of chapter number 2 of 9th class, in which lecture we study about the different types of solution according to the dispersion phase and dispersion medium. In the previous lecture we have studied about the Tyndall effect. Now in given picture, the examples of Tyndall effect in forest you will see the light is creating by the tree because the particles, या हम बोल सकते हैं, the size of leaves are larger, so the lights coming from the leaves, between the leaves, so you will see the scattering of light is possible. In the previous lecture I explained to you, in the collider solution the light path is visible because particle size are larger, so scatter the light, disperse the light. So in the collider solution we can see the path of light. Similarly, in the forest, in our atmosphere, some gases are present. The particles of gases are larger, so they scatter the sunlight, and we can see the dispersed light in our atmosphere. Okay, now there is some property of suspension is given. The particle size are larger, so we can see the particle by the naked eyes. देखिए, some properties are given. The particle of suspension can be seen by the naked eyes. The particles of suspension scatter the beam of light passing through it and make its path visible. The solid particle settle down when the suspension is left. मैंने आपको बताया था पार्टिकल बड़े होते हैं तो settle down हो जाते हैं, precipitate बनाते हैं, और we can separate the particles by the filtration process. Now in the collider solution, it is also type of solution, but particle size are smaller than suspension and larger than the true solution. We cannot see the particle by the naked eyes, but by microscope or nanoscope we can see the particles. Okay, now the Tyndall effect is an example of the collider solution. We can see the Tyndall effect in the collider solution. Similarly, the motion of the particles in a collider solution is known as the Brownian motion. याद रखिए, Tyndall solution के अंदर जो भी particles, टिंडल सॉल्यूशन यानी कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जो भी पार्टिकल जिगजैग मोशन में मूव करते हैं उन्हें हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं. ब्राउनियन मोशन याद रखेंगे ये. अब सम प्रॉपर्टीज ऑफ गिवन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, ये देखिए अभी मैंने आपको बताया था टिंडल इफेक्ट. हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है वो भी एक टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन है. आवर ब्लड इज आल्सो अ टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन. इन ब्लड द प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स एंड सम न्यूट्रिएंट्स पार्टिकल आर प्रेजेंट, बट वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन ब्लड. याद रखिएगा, ब्लड इज़ अ कोलाइडल सॉल्यूशन. मैं आपको कह रहा हूँ एटमॉस्फेयर इज आल्सो अ कोलाइडल सॉल्यूशन. जनरली वी ड्रिंक milk and other solution, they are also type of collider because we cannot the particle easily are naked. Okay, now the questions are given. First questions, देखिए properties are given of collider solution. Questions are given. Differentiate between the homogeneous and heterogeneous mixture, तो ये हम पहले भी समझ चुके हैं. How are the salt solution and suspension differ from each other. देखिए सॉल्ट, सॉल्यूशन और सस्पेंशन. तो सॉल्ट मतलब ट्रू सॉल्ट की बात कर रहा है. सॉल्ट इज़ अ सॉलिड. सॉलिड इन लिक्विड होता है, दैट इज़ सॉल्ट. सेकंड होता है लिक्विड इन लिक्विड, दैट इज़ सॉल्यूशन. और कंप्लीटली डिजॉल्व मिक्सचर इज नोन एज सॉल्यूशन. एज सस्पेंशन द पार्टिकल्स आर लार्जर, दे नॉट डिजॉल्व इन सॉल्यूशन, सेटल एट द वाटर एंड टू फॉर्म अ precipitate. To make a saturated solution, 36 gram sodium chloride dissolved in 100 gram of water at 200 degree Kelvin. Find the concentration at the temperature. देखिए 36 ग्राम प्लस 100 को आप मिक्स करेंगे तो यू गेट द 136. दिस इज द टोटल वेट एंड 36 डिवाइडेड बाय 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है, इसको मैं करके दिखाता हूँ, आप समझेंगे. लुक एट द वाइट बोर्ड. देखिए ए इज गिवन 36 ग्राम, बी इज गिवन 100 ग्राम. Total mass of substance is 136 gram. Now you calculate the percentage of A. Total mass is 136 and given mass of substance is 36. So 36 upon 136 multiply 100. After division you will get the value of A percentage minus from the 100, so you will get the percentage of B. Okay. Now in the previous lecture I explained that solutions depend on the solute and solvent quantity. Solute and solvent may be same or may be different. According to that, there are 9 types of solutions. Look at the screen. Dispersion phase means solute and dispersion medium means solvent. Liquid in gas
is the aerosol and examples fog, clouds and mist. It means कि लिक्विड यहाँ पर जो है वो कम क्वांटिटी में होता है और गैस ज़्यादा होता है। आप देखते हैं कोहरा जो स्मोक होता है या फोग होता है, वहाँ पर वाटर बहुत उसके अंदर कम होता है बट एयर ज़्यादा होती है, इसलिए फोग, क्लाउड्स और मिस्ट ये सब एग्जांपल है। इसी तरह देखिए गैस सेकंड स्टेट में, गैस सॉल्वेंट यानी ज़्यादा स्टेट में जबकि सॉलिड कम है, एरोसॉल, स्मोक। इसके बाद अगर देखें तो लिक्विड इन लिक्विड में आप देखेंगे सॉल्यूशन को इमल्सन बोलते हैं, मिल्क, फेस क्रीम, वाटर इन ऑयल, ऑयल इन वाटर भी हम कह सकते हैं। सॉलिड इन लिक्विड की बात करें दैट इज़ सॉल्ट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो आप देखते हैं डाइजेशन के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए जो भी हम पीते हैं, डाइजीन आपने सुना होगा, इट्स अ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एसिडिटी को कम करने के लिए यूज़ करा जाता है ये। सॉलिड इन लिक्विड की बात करेंगे तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैंने आपको बता दिया। गैस इन सॉलिड, फोम, रबर, स्पंज, ये गैस इन सॉलिड, इनके बीच में देखिए एयर भरी होती है और पुश करने पर साइज़ कम होता है, जैसे ही आप छोड़ेंगे तो वैसे ही साइज़ दोबारा हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि गैस इनमें कम होती है, सॉलिड ज़्यादा होता है। लिक्विड इन सॉलिड एंड सॉलिड इन सॉलिड, देखिए देयर आर द वन आई थिंक वन टाइप इज रिमेन, 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आर प्रेजेंट, बट यहाँ पर जो दिया है देखिए कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कोलाइडल, तो इसमें एक एग्जांपल नहीं दिया होगा गैस इन गैस, कहीं भी आपको देखिए गैस के साथ गैस स्टेट नहीं बता रहा है, क्योंकि गैस इन गैस कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं कहलाता है। जबकि अगर हम नॉर्मल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो गैस इन गैस सॉल्यूशन कहलाएगा। ओके, तो इन अगर आप बात हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, तो यू कैन से 8 टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। नॉर्मली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो यू कैन से 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। गैस इन गैस इज नॉट अ कोलाइडल सॉल्यूशन, इसको याद रखेंगे आप। दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, आई थिंक यू शुड अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल्स because in 12th class is also present, you will learn this example now, that it is helpful for you in the future. Okay, I hope you understand this thing. देखिए आगे, फिर separating the components of mixture, हम जनरली जानते हैं कि कुछ चीज़ों को हम किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं, जैसे हैंड पिकिंग आपने घर में देखा होगा, मदर्स जो होते हैं आपने देखा होगा घर में कि जो मदर्स जो हैं घर में चावल, you will see the some question right side. What do you think has got evaporating from the water watch glass? Yes, if ink kept inside the watch glass या ink present in the watch glass, so water completely evaporate and ink is left. Ink is a pure substance because the formula of ink is a copper sulfate CuSO4 dot H2O. H2O is a hydrated water, completely evaporate. Okay. Separating the component of mixture, I explained कि if the size and color of the substance are different, so you can pick out the substance, picking process, hand picking process. If the size is different, so you can also use the sieving process. In the solution, the size are larger, it is in form of precipitate, so you can use the technique of filtration. Okay, but in all the substance we cannot use the same techniques. You have to use the chromatography, evaporation, sublimation, condensation, chromatography, है ना, डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करना पड़ेगा। इसी तरह मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन इज़ अ प्रोसेस। इफ़ यू चेंज योर क्लासेस एवरी ईयर, तो यू विल स्टडी द डिफरेंट टेक्निक्स टू सेपरेट द सब्सटेंस। ओके, नाउ हाउ कैन वी ऑब्टेन द कोलाइडल कंपोनेंट फ्रॉम द ब्लू और ब्लैक इंक? बेटा 2.5 इवोपरेशन ऑफ डायग्राम, देखिए टेक अ ग्लास है ना, और उसमें आपने इंक पुट करा, इंक मीन्स कॉपर सल्फेट प्लस वाटर इट इज हाइड्रेट फॉर्म। नीचे बीकर रखा, बीकर में पानी फिल किया, उसे वॉच ग्लास को हमने ऊपर से रख दिया। जब आप गर्म करेंगे तो वॉच ग्लास के अंदर जो इंक है, इंक में जितना ही वाटर होगा वो इवोपरेट हो जाएगा, और फिर हमें जो वॉच ग्लास में जो इंक मिलेगी वो प्योर फॉर्म में मिलेगी। तो by the evaporating process we can get the black and blue ink. How can we separate the cream from the milk? बेटा this technique is called centrifugation. आपके घर में मिक्सर ग्राइंडर होगा, आपने देखा होगा जब उसमें कोई मटेरियल डालते हैं, लिक्विड सब्सटेंस डालते हैं, तो उससे जब कंटिन्यू तेज़ी से रोटेट कराते हैं
बीच में सेंटर उसके रोटेटिंग व्हील लगे होते हैं, रोटेटिंग ब्लेड्स होती हैं, जिसके कारण जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर की तरफ सेटल हो जाते हैं, जबकि हैवी पार्टिकल नीचे सेटल हो जाते हैं। तो जब क्रीम, हाँ, जब मिल्क को आप किसी जार में या रोटेटिंग कंटेनर में सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के थ्रू जब आप रोटेट करते हैं तो आप देखेंगे मिल्क में जो मलाई होती है, यानी जो क्रीम होता है, जो फोम होता है वो ऊपर की तरफ सेट हो जाता है बिकॉज इट इज़ लाइटर, और जो मिल्क में हैवी पार्टिकल्स है, जो फेट होता है, वो ऊपर हो जाएगा, और जो हैवी पार्टिकल्स है, जो कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन पार्टिकल्स, वो नीचे सेटल हो जाते हैं। तो बाय सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस वी कैन सेपरेट द मिल्क एंड क्रीम। ओके, द सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ प्रोसेस इन विच the central body या central object consists the centrifugal force, and by this force the blades or any compound rotated. Okay, see in the last paragraph, sometimes the solid particle in the liquid are very smaller, so we can't filter the solution, we cannot separate the solid particle from the solution, so that time you have to use the centrifugation process. The principle is that the denser particles are forced to bottom and the lighter particles stay at the top when the spun rapidly. मैंने आपको बताया है ना, सॉलिड पार्टिकल जो हैवी पार्टिकल है वो नीचे सेटल हो जाते हैं और लाइटर पार्टिकल ऊपर हो जाते हैं। चाहे तो आप आज करके देख सकते हैं अपने घर पे। Now, the application of centrifugation process to separate the mixture of oil and water. In the extraction of iron from its ore, the lighter slag is removed from the top by the method to leave the molten iron at the bottom in the furnace. ये मेट्रोलॉजिकल एक्सट्रैक्शन करके एक चैप्टर आएगा आगे, आपको 12th में आता है, 10th में आता है, वहाँ हम पढ़ेंगे। एप्लीकेशन यूज इन द डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर द ब्लड एंड यूरिन। आपके ब्लड में जो प्लाज्मा प्रेजेंट होता है उसको सेपरेट करने के लिए भी यूज़ करा जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा जब ब्लड टेस्ट होता है तो उसमें आपको प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, लिम्फो, जो भी वाटर के अंदर, जो भी ब्लड के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं उनकी काउंटिंग के लिए भी सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ होता है। डॉक्टरों के पास सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है जिसके अकॉर्डिंग इसको सेपरेट किया जाता है। और नॉर्मल अगर हम देखें हमारे घर में सेंट्रीफ्यूगल्स मशीन जो है वो मिक्सर ग्राइंडर है। ओके, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन दिए, कॉन्सेप्ट बेस दिए, आपको समझना पड़ेगा। हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसेबल लिक्विड। देखिए इमिसेबल लिक्विड होता है तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, जैसे ऑयल और वाटर है तो उसको हम सेपरेटिंग फनल आती है जिसकी सहायता से हम सेपरेट कर सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको। दिस इज़ द सेपरेटिंग फनल बेटा। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपने वाटर और ऑयल को एक साथ भर दिया तो ये देखिए नीचे जो लेयर बन जाएगी ये वाटर की बन जाएगी क्योंकि वाटर हेवियर होता है। और अगर हम बात करें ऊपर की तरफ तो ऊपर की तरफ जो लेयर बन जाएगी ये बन जाएगी आपकी ऑयल की, ये ऑयल लेयर बन गई, और ये नीचे वाटर की लेयर बन जाएगी। यू कैन सेपरेट द टू इमिसिबल लिक्विड बाय द सेपरेटिंग फनल, इन्हें सेपरेटिंग फनल कहा जाता है। ओके, और अगर ज़्यादा क्वांटिटी में होता है तो हम फिर इसके लिए अलग अलग टाइप की ज़्यादा बड़े लार्ज साइज में हम फिर सेपरेटिंग फनल का यूज़ कर सकते हैं। इन द लेबोरेटरी द ब्यूरेट इज़ गिवन फॉर दैट, है ना, अ लॉन्ग 50 सेंटीमीटर ट्यूब इज़ देयर। इट इज़ आल्सो यूज टू सेपरेटिंग द लिक्विड दैट दोज लिक्विड्स आर इमिसिबल। ओके, देखिए द प्रिंसिपल इज दैट द इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन द लेयर डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगा भारी होगा और नीचे होगा, मैंने आपको बताया डायग्राम में। सेकंड क्वेश्चन 2.3.4 क्वेश्चन, हाउ कैन वी सेपरेट द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फोर। देखिए सॉल्ट और कैम्फोर, अगर आपको कैम्फोर मालूम है तो सॉलिड टू गैस कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज सब्लिमेशन प्रोसेस कैन बी यूज टू सेपरेट द कैम्फोर एंड सॉल्ट। नीचे डायग्राम आपको दिया है, सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू हम देख सकते हैं। देखिए डायग्राम में आप देखेंगे तो ये आपको बर्नर, ट्राइपॉड स्टैंड, चाइना डिश दिया है, देन उसके बाद कैम्फोर का मिक्सचर रखा है, एक ट्रायगोनल या फिर फनल को जब हम उल्टा करके देखेंगे उसमें कॉटन प्लग दिया है। तो देखिए जब कैम्फोर को आप गर्म करेंगे तो इट कन्वर्ट टू फॉर्म ऑफ वेपर, और वो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और नीचे जो चीज़ बचेगी वो हमारे पास सॉल्ट रह जाएगा। ओके, आपको ये इन्वर्टेड फनल दी गई है और सॉलिडिफाइड कैम्फोर जो है साइड में, फनल के साइड में लगा हुआ है। आप देखेंगे जैसे इसको गर्म करेंगे तो कैम्फोर तो पूरा उड़ जाएगा और नीचे हमारे पास जो है सॉल्ट बचेगा। ओके,
इज़ दैट क्लियर? तो ये मेरे अंदर से आपको डायग्राम समझ में होगा। दैट प्रोसेस कॉल्ड सब्लिमेशन प्रोसेस। नीचे आपको दिया है सब्लिमेशन प्रोसेस। ये देखिए, ये फनल से आपको बताया सेपरेटिंग फनल डिपेंड अपॉन डेंसिटी। नाउ नेक्स्ट, इज़ द ड्राई इन द ब्लैक इंक सिंगल कलर? तो ब्लैक इंक मैं चाहता हूँ कि आप करें खुद से, कि अगर मान लीजिए उसको उसमें कोई कंपोनेंट प्रेजेंट होता है तो फिर हम उसको प्योर नहीं कहेंगे, और अगर कोई कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं हुआ तो वी कैन से द प्योर सब्सटेंसेस। इज़ द डाई इन डाई मीन्स जो कलर करने के लिए यूज़ करते हैं, इज़ अ ब्लैक आ सिंगल कलर? नो। अगर हम देखेंगे तो ब्लैक डाई ज़रूरी नहीं है कि वो पूरे ब्लैक कलर में हो, या डाई के अंदर केवल ब्लैक कलर हो, उसके अंदर अदर लिक्विड्स मिले होते हैं, अदर कलर की इंक मिली होती है। तो हम अब ये क्वेश्चन आता है कि दो लिक्विड जो एक जैसे नेचर के हैं उनको हम कैसे अलग कर सकते हैं? तो यहाँ पर आपको दिया गया है, देखिए, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इज़ नोन एज द क्रोमेटोग्राफी। और क्रोमेटोग्राफी मीन्स जो होता है वो कलर होता है, जिसका यूज़ जो ऐसे लिक्विड जो एक जैसे हों, जिनकी स्टेट एक जैसी है, बट उनको कलर के कलर के बेस पर हम उनका सेग्रेशन कर सकते हैं, तो क्रोमेटोग्राफी यूज़ करता है। क्रोमेटोग्राफी इज़ अ टेक्निक यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ दो सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। मैंने आपको बताया एक जैसी प्रॉपर्टी होती है, बट उनको कलर के अकॉर्डिंग हम सेपरेट कर सकते हैं। टू सेपरेट द लिक्विड वी यूज़ द क्रोमेटोग्राफी टेक्निक एंड क्रोमेटोग्राफी पेपर इज़ यूज। तो कहाँ का यूज़ करते हैं? टू सेपरेट द कलर डाई, पिगमेंट फ्रॉम द नेचुरल कलर्स, ड्रग फ्रॉम द ब्लड। ओके, ये क्या करता है कि जो फिल्टर पेपर होता है वो दो अलग अलग कलर को फ्लोटिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सेपरेट करता है। इसके अलावा जो हम देखते हैं जो परफ्यूम्स होते हैं या जो ड्यूज़ होते हैं, आप देखते हैं जो फ्लावर के नेचुरल एक्सट्रैक्ट आते हैं उनके अंदर, या उसकी सुगंध आती है, तो वो सब क्रोमेटोग्राफी का ही यूज़ करा जाता है। अच्छा, यहाँ पर आप एक डायग्राम देख रहे हैं क्रोमेटोग्राफी चेम्बर से लेके। बेटा एक बड़ा ग्लास जार होता है, इसके अंदर जो ब्लू कलर का आप सॉल्यूशन देख रहे हैं, ये सॉल्यूशन कोई भी अल्कोहलिक या कोई भी एप्रोटिक टाइप का सॉल्यूशन होता है। अल्कोहल ले लेते हैं, ईथर ले लेते हैं, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड ले लेते हैं। इसमें फ़िल्टर पेपर पर लगभग नीचे डाउन बॉटम से 1 सेंटीमीटर पे इंक का डॉट रख दिया था, और उसको इस जार में जब रखते हैं तो कुछ समय बाद देखते हैं कि जो सॉल्वेंट है वो वेपोराइज होने के कारण इंक को भी ऊपर की तरफ ले जाता है। तो अगर उसके अंदर दो लिक्विड प्रेजेंट होते हैं तो वो एक लिक्विड की लेंथ अलग आती है और दूसरे की अलग आती है, इसको हम आसानी से अलग कर सकते हैं। सी एट द वाइट बोर्ड, देखिए नीचे एक तरीके का सॉल्वेंट होता है, मान लीजिए अपन यहाँ एल कोल फिल कर देते हैं। ये जो है एक क्रोमेटोग्राफी स्ट्रिप है, फ्री स्ट्रिप। यहाँ पर बेटा ये जो आपको ब्लैक रंग का नीचे डॉट दिख रहा है स्ट्रिप में, यहाँ पर वो इंक का हम एक डॉट रखते हैं, वो भी इस तरीके से रखिए कि आसानी से फैले ना, एक सिंपल डॉट रखते हैं। अब इसको जब आप ऊपर से रखने के बाद इसको कवर कर दीजिए। अच्छा, ये जो लिक्विड होता है, ये लिक्विड इस डॉट में डिप नहीं होना चाहिए, केवल का जो स्ट्रिप है उसका थोड़ा सा पार्ट नीचे डिप होगा। अब ये क्योंकि अल्कोहल जो होता है वो वोलेटाइल होता है, धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होता है, तो वेपर के कारण ये जो लिक्विड है धीरे धीरे आप देखेंगे तो एब्जॉर्ब होकर धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा, और आपको यहाँ पर डिस्टेंस मिलेगा। मान लीजिए दो अलग अलग कलर हैं तो आधा आपको यहाँ मिलेगा और आधा यहाँ, यानी ऊपर और नीचे अलग अलग लेयर बनेगी। तो दिस टेक्निक इज़ कॉल्ड द क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, एंड वी will do the experiment in the laboratory by the some chromatograph paper and chambers. Okay, see beta, in this chapter the activities are given, many activities are given, so you should study the activity, try to solve the question related to the activity. If do you have any doubt related to the questions or having any problem, you can ask me. Okay, thank you.